Good morning, everyone. Today we are going to discuss divisional structure. As I said, there are two type of structure of organization. Function one is first one is functional structure, and second one is divisional structure. Functional structure I had already discussed in my previous session. So today we are going to start divisional structure of the organization. As I already said, the organization which deals in more than one line of product, they must have division of their product. Like here, you have given a small diagrammatic presentation here, hierarchy of the organized structure here. Textile is there, cement is there, companies manufacturing textiles, manufacturing cements, producing food products or producing computer. Same company have four product lines. Okay, so here each product line have their separate फंक्शनल स्ट्रक्चर. मतलब डिविजनल स्ट्रक्चर में अंदर जो जो प्रोडक्ट लाइन होगी, जैसे ये प्रोडक्ट लाइन है तो इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर सेपरेट बनेगा. इट हैज़ ऑल्सो इट्स ओन सेपरेट फंक्शनल स्ट्रक्चर. इट हैज़ ऑल्सो ऑलरेडी गिवन इन एग्जाम्पल फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड इट हैज़ ऑल्सो हैव must have same separate their functional structure. Got it? So divisional structure, let us come to the definition of divisional structure. When the organization is producing more than one type of product and serving a number of distinctive markets, the divisional structure is considered more suitable. It means जो मैंने बात कही पहले वही वापस यहाँ पर बोले कि मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट में डील करती है, प्रोड्यूस करती है एंड सर्विंग नंबर ऑफ डिस्टिंक्टिव मार्केट, द डिविजन स्ट्रक्चर इज़ कंसिडर्ड मोर सुटेबल. उनके लिए ऐसी फर्म के लिए, ऐसी कंपनी के लिए डिविजन स्ट्रक्चर ज़्यादा सुटेबल. डिविजन स्ट्रक्चर इज एन organization design where there are separate division for different product. Each division have functions like I already said, each division have their separate functionaries. Okay, with the help of red mark I explained earlier. Each division heads is required to look after all the function related to the product or market territory. Again, they showed with the help of this managing director, CEO of books, CEO of periodical, CEO of stationery, CEO of music and movies. तो इसमें कौन लुक आफ्टर करेगा? ये CEO ऑफ बुक्स का जो लुक आफ्टर है वो सिर्फ जो बुक रिलेटेड काम है उसको ही देखने का है. CEO ऑफ periodical का periodicals पर ये, CEO ऑफ स्टेशनरी देखेगा. CEO ऑफ म्यूजिक एंड मूवीज वो म्यूजिक एंड मूवीज को ही लुक आफ्टर करेगा. बुक वाला पीरियडिकल नहीं देखेगा, पीरियडिकल वाला बुक नहीं देखेगा, पीरियडिकल वाला स्टेशनरी म्यूजिक नहीं देखेगा, स्टेशनरी पीरियडिकल बुक्स और म्यूजिक मूवीज़ नहीं देखेगा, और म्यूजिक मूवीज स्टेशनरी पीरियडिकल बुक्स नहीं देखेगा. सब अपने अपने डिवीज़न पर ही फोकस होंगे, अपने अपने डिवीज़न पर ही नज़र रखेंगे. गॉट इट? नाउ डिविजनल स्ट्रक्चर हियर, L&T company division shows here, divisional structure showed here. L&T have L&T deal in different segments: power, financial services, machinery and industry product, electrical and electronic, IT and communication, infrastructure and construction, and heavy engineering work. Okay, so many divisions L&Ts have here. Example of for divisional structure on the basis of product: कॉस्मेटिक मैनेजिंग डायरेक्टर, कॉस्मेटिक, मेडिसिन, गारमेंट्स, फुटवेयर. अगर अपन रिलायंस की बात करें तो रिलायंस पे पूरा की पूरा डिविजनल स्ट्रक्चर कंसेप्ट फिट बैठता है, क्योंकि रिलायंस हैव डिफरेंट सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट. उनके पास जियो है, उनके पास पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है, उनके पास में रिलायंस फ्रेश है, आज उनके पास में रिलायंस स्टोर है, रिलायंस स्कूल्स है ना. दे डील इन मैनी प्रोडक्ट. रिलायंस म्यूचुअल फंड है. ठीक है, तो उनके पास में अलग अलग डिवीज़न से, उन अलग अलग डिवीजन्स को देखने के लिए पूरा अलग से एक डिवीज़न, अलग से CEO वगैरह, मैनेजर वगैरह सब बैठाए गए उनके द्वारा. ओके, एग्जाम्पल फॉर डिविजन स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी: बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबके कॉमन है. देखिए, नॉर्थ डिवीजन, ईस्टर्न डिवीजन, सदर्न डिवीजन, एंड ईच डिवीजन हैव
देयर फंक्शनरीज। आप देखोगे अगर जियो कंपनी की बात करें तो उसमें मालिक सबके सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर्स जो है वो अंबानी परिवार का ही है। ओके, है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉमन चलेगा, लेकिन डिवीज़न अलग अलग चलेंगे उनके बिजनेस। एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन वी गार्ड लिमिटेड, लीडिंग कंपनी इन केरला, is engaged in diversified business, namely electrical, textile, amusement parks, etc. Each of these have different departments, namely marketing, production, finance, research and development, etc. In this case, the companies should adopt divisional structure because product specialization helps growth and facilitates diversification of enterprise. It promotes flexibility and initiative because each division functions as an autonomous unit which leads to faster decision making. क्या होता है डिवीजन करने से? क्या सबसे बड़ा फायदा ये होता है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। जो प्रोडक्ट अपने अपने अलग अलग कैटेगरी के होंगे वो अपनी अपने अलग अलग डिवीजन में प्रोड्यूस होंगे। तो एक तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन प्रमोट होता है, हेल्प्स एंड फैसिलिटेट टू ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज। हमारा एंटरप्राइज डाइवर्सिफाई हो जाता है, ग्रोथ बढ़ती है इससे। एंड इट प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव बिकॉज ईच डिवीजन फंक्शंस एज ऑटोनोमस। हर डिपार्टमेंट के अपने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है, अपने अपने डिसीजन है, ठीक है, जिससे डिसीजन मेकिंग बहुत फास्टर हो जाती है। डिपेंड नहीं पड़ता है कि हमें डिसीजन लेना है तो हम दूसरे डिवीजन के बारे में सोचें। Now there are some advantages of divisional structure, organizational structure, divisional structure, skill development, chance for promotion, responsibility can be fixed, quick decisions, expansion and growth. So some advantages, product specialization I already said, it leads to product specialization क्योंकि because of product specialization only departments, different divisions are formed. So it is related to one type of product are grouped under one department and under one type of product grouped under one division. Attention on individual product line permits its growth and facilitate diversification of enterprise. Okay. Second one is coordination become easy. Activities like purchase, production, marketing, कोई यहाँ पे खिचड़ी नहीं बन रही है। जैसे अभी अपन ने देखा ये कंप्यूटर भी है या स्टेशनरी भी है, तो कंप्यूटर का काम कंप्यूटर में हो रहा है, स्टेशनरी का स्टेशनरी में हो रहा है, पीरियडिकल का पीरियडिकल में हो रहा है। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई खिचड़ी नहीं बन रहा है। कोऑर्डिनेशन इससे क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है कि आप कंप्यूटर वाले को कंप्यूटर का ही काम देखना है, कंप्यूटर के डिपार्टमेंट सिर्फ कंप्यूटर को ही लुक आफ्टर करेंगे। ओके, तो उनका सारे एक्टिविटीज़ लाइक परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस, सब कुछ क्या होता है कोऑर्डिनेटेड हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। इवन दे आर हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। नाउ हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड पॉइंट, डिविजनल हेड्स आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट्स। जैसे अभी अपन ने बताया कि हर डिवीजन का सीईओ हो जाएगा। अब वो सीईओ क्या हो जाएगा, अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट एज रेवेन्यूज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड एंड असाइन टू देम। इट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केसेस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन। अब 4 डिवीजन है, अगर किसी डिवीजन की अगर पुअर परफॉर्मेंस है तो उसमें अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स कर सकते हैं, उसमें अपन अकाउंटेबिलिटी तो कर सकते हैं। लेकिन अगर चारों खिचड़ी में चलेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा किससे प्रॉफिट हो रहा है, किससे लॉस हो रहा है, ठीक है। लेकिन चारों का अगर रहेगा तो चारों का बैलेंस शीट होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इससे एटलीस्ट हमें ये पता पड़ सकता है कि हमारा कौन सा डिवीजन लॉस में चल रहा है और कौन सा डिवीजन हमें अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। गॉट इट? It promotes flexibility and initiative. It promotes flexibility because each division functions as an autonomous unit which leads to faster decision making. What I said earlier कि हर डिवीज़न में अपने अपने ओन डिसीजन लेना है, डिपेंड नहीं होना है, ठीक है, किसी दूसरे डिवीज़न पर। तो इससे क्या होता है, इससे एडवांटेज फ्लेक्सिबल होता है। चीज़ ये फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करता है, इनिशिएटिव को प्रमोट करता है एंड हेल्प इन टेकिंग फास्टर डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। गॉट इट? नाउ डिसएडवांटेजेस। अब इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। देखो हर जगह एवरी कॉइन हैज़ 2 फेसेस, वन इज हेड एंड अदर वन इज टेल, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा कोई एडवांटेज जहाँ भी आते हैं किसी चीज़ के, तो अपने आप उसके डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने फंक्शनल स्ट्रक्चर कर पढ़ा था, उसमें भी
एडवांटेज थे तो डिसएडवांटेज थे, यहाँ पे एडवांटेज है तो यहाँ भी आपको डिसएडवांटेजेस देखने को मिलेंगे। तो हियर फर्स्ट हियर सम डिसएडवांटेजेस आर रिटन हियर। conflict among divisions on fund allocation। अब क्या होता है, डिविजन्स होते हैं अलग अलग, तो किसी डिवीज़न को कभी हो सकता है कि ज़्यादा पैसा मिला हो, किसी को कम मिला हो, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, कई बार आपका फंड एलोकेशन में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। इंक्रीज कॉस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज देयर, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। अब क्या होता है, डिवीज़न मतलब आप तो ये समझ रहे हो कि आप मालिक बन गए, आपके अंडर में पूरा डिवीज़न चल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि कई बार अथॉरिटी का मिसयूज भी हो जाए। तो कन्फ्लिक्ट में अराइजिंग अमंग डिफरेंट डिविजन्स, मैनेजर इन ईच डिवीजन में फोकस ऑन देयर ओन प्रोडक्ट इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देयर में बी कन्फ्लिक्ट with different divisions regarding allocation of resources priorities. Chances of there may be duplication of activity which leads to high operating cost. सेल्फिश एटीट्यूड बन जाएगा यहाँ पर, आपको सिर्फ अपने काम से मतलब है, आपको कोई मतलब नहीं ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, आपको कोई मतलब नहीं दूसरे डिविजन्स में क्या चल रहा है, ठीक है। तो हर डिवीज़न क्या हो जाएगा, अपने आप में सेल्फिश हो जाएगा। एवरी डिवीजन ट्राइज टू डिस्प्ले बेटर परफॉर्मेंस समटाइम्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिवीजन। दिस shows their selfish attitude. Consequently, it hits the interest of the concern as whole. So got it? So student, today and suitability, large variety of products are produced by the help of a divisional structure. Organization works in various parts of the country. Okay, so we have to follow divisional structure for the organization. Now, tomorrow we'll discuss functional organization versus divisional organization. Difference between functional and divisional. Then after that we'll start informal organization, formal and informal organization, in which also merits and demerits, and these are very important topic for the examination point of view. So thank you so much, have a nice day.